गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। That is our aim of this particular subject, data communication. Data communication means a data should or must be traveled from sender to receiver in magnificent way, or we can say in effective manner. यहाँ अपन ने अब तक जो पढ़ा है, जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, that is totally based on OSI model, open source interconnection model. That is our base, or we can say that is our particular strategy for data communication. It has a layered architecture. It means it has 7 basic layers. Each layer has its own function. Each layer has its own processing. Something like that. First layer is physical layer, which has to describe physical capabilities or physical communication between physical device to network. Second one we already discussed is data link layer. That has 3 basic functions: line discipline, flow control and error control, that we already discussed. Third one is network layer. Today we will discuss network layer. और we will discuss network layer functioning. आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए OSI मॉडल के अंदर क्या होगा, सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं फिजिकल लेयर। उसके ऊपर जो होती है उसको अपन बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। उसके ऊपर जो होती है उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क लेयर। उसके ऊपर जो होती है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके ऊपर सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर। अपन यहीं तक लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर लेयर, दैट इज नोन एज नेटवर्क लेयर, व्हिच इज एन इंटरफेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक। In our second unit we discussed the physical layer functioning, how physical layer works, how physical layer implements in data communication. After that we discussed how data link in previous unit, that functioning, that processing, that he can execute during data communication. Our next layer is network layer. In this particular unit, or in this topic of network layer, we discussed what is network layer, what is functioning of network layer, which type of protocols mainly used in network layer, and its addressing schemes, which is most popular or most, we can say that is most important concern of network layer. यहाँ अब तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। आज अपन इस वीडियो में नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क लेयर के अंदर की स्पेशली क्या पढ़ेंगे कि नेटवर्क लेयर क्यों यूज की जाती है। फर्स्ट, विच इज बेसिक फंक्शनिंग ऑफ नेटवर्क लेयर, कि उसके मुख्य काम क्या है, किन प्रोटोकॉल्स का वो यूज करती है, जिनका यूज करते हुए वो बेसिकली इंप्लीमेंट होती है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है एड्रेसिंग स्कीम, लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। ये एड्रेसिंग स्कीम किस तरीके से रन करती है, कैसे नेटवर्किंग लेयर में एड्रेसिंग की स्कीम को लागू किया जाता है, ये सारी चीजें हमको एट फर्स्ट वी असाइन सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क लेयर। सबसे पहले अपन नेटवर्क लेयर के उन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। व्हाट इज नेटवर्क लेयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन
data link layer and transport layer. It is an interface between data link layer and transport layer. इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है. मध्यस्थ का मतलब ये होता है that it access some kind of material or access some kind of input from transport layer and provide it to data link with some meaningful assumptions, with some meaningful header attachment, etc. As well as receiver end, it takes input from data link layer and that provides after some meaningful corrections provided to transport layer. इसका काम क्या होता है इंटरफेस का? It simply means कि जब अपन सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सेंडर मशीन की तरफ बात करते हैं, suppose that is working or processing at both ends, here to here communication exists of data. सेंडर के पास ये हमेशा डेटा जो है वो नेटवर्क लेयर से प्राप्त करेगी, उसके अंदर कुछ करेक्शंस करेगी. नेटवर्क लेयर करेक्शन मींस सम अटैचमेंट्स, सम हेडर अटैचमेंट्स, सम मीनिंगफुल एड्रेसिंग अटैचमेंट्स एक्सेट्रा. वो सारा करने के बाद फिर इसको दे देती है वो डेटा पर्टिकुलर डेटा लिंक. एंड ऑन द अदर हैंड एट रिसीवर एंड वी कैन से उस भाग में ये क्या काम करती है? वही चीज, वही डेटा जो उसको मिलता है डेटा लिंक लेयर से, उस डेटा लिंक लेयर से वो डेटा प्राप्त करती है, उसके जो करेक्शन किए गए थे उनको चेक करती है लाइक एड्रेसिंग एंड अदर थिंग्स एंड देन आफ्टर इट प्रोवाइड टू नेक्स्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट उसको प्रोवाइड कर देती है. तो ये इसकी होगी इंटरफेस दोनों के बीच. Next, its main work is internetwork. That is the most important concern. Internetworking. There are two words: inter plus networking. What is internetworking? अलग अलग नेटवर्क्स को कंपेटिबल बनाना, एक दूसरे के लायक बनाना, उसके लिए ये मैकेनिज्म प्रदान करती है. कौन प्रदान करती है? नेटवर्किंग. ये बताती है कि किस तरीके से अलग अलग नेटवर्क्स में डेटा आसानी से चल सकता है, किस तरीके से अलग अलग नेटवर्क्स में डेटा को आसानी से यूज किया जा सकता है. हाउ इजीली डेटा कैन ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू मीनिंगफुल और वी कैन से थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन which made by multiple networks, जो अलग अलग नेटवर्क से बना हो, वो चीज बताने के लिए इंटरनेटवर्किंग कंसर्न होता है या इंटरनेटवर्किंग होता है. इफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, सपोज कीजिए ये अपना कोई नेटवर्क है, नेटवर्क 1, इसमें कोई सेंडर है A, ये सेंडर है A के नाम से, ऐसे ही कोई रिसीवर है बी के नाम से. If A sender has to transmit data to B and both sender and receiver exist in the same network 1, then there are no need of network. जो मैंने अभी भी कहा, that is most important concern in data communication point of view, that if I repeat, if suppose a sender A wants to transmit data to receiver B, both A and B exist in same network, then there is no need of network layer. इसका मतलब ये है कि जब A और B, A suppose sender है, B suppose receiver है, A को डेटा ट्रांसमिट करना है B को, suppose करते हैं, और दोनों का मतलब A और B दोनों के दोनों यदि एक ही नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट कर, मतलब नेटवर्क 1 में, उस स्थिति में नेटवर्क लेयर की कोई आवश्यकता नहीं. देयर आर नो नीड ऑफ नेटवर्क लेयर इफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्जिस्ट इन सेम नेटवर्क. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब छोटे क्वेश्चन की बात चलती है, अपने कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो,
उसके अंदर ये चीज बहुत बार पूछी जाती है दैट नेटवर्क लेयर OSI मॉडल इज मोस्ट प्रोफेशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस सिलेबस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आपने जब भी देखा होगा, चाहे बिल्कुल सिंपल सा हो, आएगा जब उसके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अगर सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही नेटवर्क में हो तो किस लेयर की आवश्यकता नहीं होती। मल्टीपल चॉइसेस में कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। इसके अलावा नेटवर्किंग क्या करती है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग का काम। लॉजिकल एड्रेसिंग इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ नेटवर्क लेयर। There are two addressing schemes used in data communication. डेटा कम्युनिकेशन में दो प्रकार की एड्रेसिंग स्कीम्स का यूज किया जाता है। पहली एड्रेसिंग स्कीम होती है फिजिकल एंड सेकंड वन इज लॉजिकल। तो जो लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम है वो आपकी नेटवर्क लेयर के द्वारा, दैट इज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर इन डेटा कम्युनिकेशन। पैकेट फ्रेगमेंटेशन, ये काम करती है। पैकेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि पैकेट को टुकड़ों में तोड़ने का, लॉजिकल एड्रेस डिसाइड करने का और उन टुकड़ों को वापस भेजने का, उन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करती है। वो काम भी नेटवर्क लेयर का है। रूटिंग, that is also defined by network layer. A network layer defines in which route or in which communication link data should be traveled during data communication. Data must be traveled during data communication. नेटवर्क लेयर ये भी बताती है कि जब अपन मतलब सेंडर रिसीवर के पास डेटा भेज रहा है तो वो डेटा किस रूट से होकर जाएगा, किन किन जगहों से होकर जाएगा, कौन से रूट को फॉलो करेगा। इन चीजों को डिफाइन करने का काम भी नेटवर्क लेयर करती है। तो ये कुछ एक ऐसे वर्किंग है या कुछ एक ऐसी फंक्शनिंग है जिनका यूज किया जाता है या जो चीज पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट की जाती है ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन बाय नेटवर्क। अब ये जो लिंक है इनमें से अपन ने ये वाला फुली रूप से डिस्क्राइब किया, अपन अपने पास आपके सिलेबस के अंदर इनका फुली डिस्क्रिप्शन है, तो अपन इनको बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे कि ये चीजें होती क्या, किस तरीके से यूज की जाती है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरफेसिंग। फर्स्ट फंक्शन इज इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग क्या है? It is an interface between two layers. Which type of layers? Suppose that is transport layer, that is network layer, so that is packet of transport. After that, there is packet of networking, and last that is packet of data link layer.
We are discussing about interfacing. Interfacing means that is a layer, particular layer, network layer. How it interfaces data between two layers. How it is an interface or an intermediate between transport layer and data link. अपने को इसके अंदर ये समझना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच वाली ये जो लेयर है, नेटवर्क लेयर, ये किस प्रकार से मध्यस्थ का काम करती है. At both ends, that is the sender end, and that is called receiver. ये कोई सेंडर है, इस जगह पर कैसे काम करती है, ये सपोज कोई रिसीवर है, इस जगह पर कैसे काम करती है. We have to explain that particular topic by a suitable diagram. We can say by this diagram. यहां ये ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा को लेती है, किस जगह पर, सेंडर पर. डेटा आएगा, डेटा के साथ ये एक हेडर अटैच है, हेडर एच. ये जो डेटा था सेम डेटा यहां पर एग्जिस्ट है. और फिर इस पूरे पैकेट को डेटा लिंक लेयर को भेज. अब ये पूरा का पूरा पैकेट डेटा नाम को दिया हुआ. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हेडर. दैट इज इंटरफेसिंग ऑफ नेटवर्क लेयर एट सेंडर एंड. सेंडर एंड में क्या काम करती है, इसको अपन देखो एक बार एक्सप्लेन करें. सेंडर एंड में जो डेटा आएगा इसके पास वो कौन सी लेयर से आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से. ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आ रहा है वो रिसीव करेगी कौन, नेटवर्क लेयर. देन आफ्टर इट अटैच एन ए हेडर मींस इसके प्रोटोकॉल, इसका एड्रेसिंग स्कीम, इसका राउटिंग स्कीम, सब कुछ इसके साथ ऐड है. वो चीज होने से जो डेटा है थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है इसका साइज. And then after that attached data will transmit to data link layer. Data link layer के पास भेज देती है. मतलब सिंपली इंटरफेसिंग का मतलब ये है कि कैसे मध्यस्थ का रोल अदा करती है. डेटा लिया सेंडर के पास से, कौन सी लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से, किसको भेज दिया, नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर ने इसका काम किया, इसके साथ हेडर अटैच किया. देन आफ्टर इट ट्रांसमिट और वी कैन से कम्युनिकेट दैट पर्टिकुलर डेटा प्लस हेडर टू डेटा लिंक लेयर. ये तो सिनेरियो हो गया कहां, जिसको अपन बोलते हैं सेंडर लेवल. रिसीवर लेवल में क्या होगा, सेम वही चीज जो डेटा स्ट्रीम है वो जी जाएगी. ये डेटा सेम भेज देता है इसके पास. डेटा लिंक लेयर के पास. ये वापस भेज देता है इसके पास, ट्रांसपोर्ट के पास. दैट इज कम्युनिकेशन एंड एट रिसीवर एंड. देखिए दोनों के अंदर क्या काम है, सेम है. That is parallel processing. That is we can say sequential or synchronized processing. Here at sender level, or we can say at sender end, it receive data from transport layer, and after attaching a header which has some meaningful information, transmit to data link. At receiver end, it get data from data link layer. It's separated its header. It separated its header from that particular data and again transmit to its above layer, that is transport. ये क्या काम करती है, यहाँ इस एंड के ऊपर डेटा लिंक लेयर से लेती है, फिर उसके बाद उस डेटा से यहाँ जो उसने हेडर अटैच किया वही हेडर यहाँ के अपना निकाल लेते हैं फॉर चेकिंग प्रोसेस कि उस हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज करेक्ट और नोट. वो निकालने के बाद फिर से डेटा इसके पास ट्रांसमिट कर देती है
रिसीवर के पास ट्रांसमिट कर देती है। इट मीन्स द होल प्रोसेस विच हियर अटैचमेंट हियर रिलीज, जो यहाँ पर जोड़ा गया था वो वहां पर हटा लिया जाता है। इस पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरफेस। दैट इज फर्स्ट और बेसिक फंक्शन ऑफ डेटा नेटवर्क। After that, second one is internetworking. The second and most, you can say, it is most important concern or function of network layer, internetworking. What is internetworking? There are two words, inter plus network. Network means a single network, and inter plus network means more than one networks, more than one effective networks which can our data ट्रांसमिट ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन। अगर एक ही नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट हो रहा हो तो नेटवर्क लेयर की आवश्यकता ही नहीं, ये अपन पढ़ चुके हैं। इफ देयर आर मोर देन टू नेटवर्क्स, वन नेटवर्क सॉरी 2 3 4 5 6, then internetworking must be needed. Internetworking means compatibility of networks. सपोज करते हैं कि एक से ज्यादा नेटवर्क के थ्रू डेटा जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति हो कि एक से ज्यादा नेटवर्क से डेटा जा रहा हो और वो सारे नेटवर्क अलग अलग रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन से लगे ये अपने को पता नहीं डेटा कम्युनिकेशन में, तो उनको एक दूसरे के लायक बनाना पड़ता है, कंपेटिबल बनाना पड़ता है, ताकि डेटा इफेक्टिवली जा सके। और उनको इफेक्टिवली भेजने के लिए या उनको एक दूसरे के लायक बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज इंटरनेटवर्किंग। दैट इज नोन एज इंटरनेटवर्किंग। और वो जो इंटरनेटवर्किंग का काम है वो नेटवर्क लेयर करती है, उन दोनों को एक दूसरे के लायक बनाने का काम करती है, ताकि वो एक दूसरे से समझ सके। दैट इज इंटरनेटवर्किंग। सम इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेज आर यूज्ड इन पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स। कुछ इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेज का यूज किया जाता है अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, लाइक राउटर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। राउटर की सहायता से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है फॉर इंटरनेटवर्किंग पर्पस। इसको भी अपन एक डायग्राम से समझते हैं। सो देयर इज ए सेंडर एक्स, सेंडर एक्स, इट हैज टू ट्रांसमिट डेटा टू रिसीवर आर। इसको डेटा ट्रांसमिट करना है इस रिसीवर के पास, सपोज करते हैं। देन इट हैज टू कम्युनिकेट बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स। सपोज दैट इज नेटवर्क 1, network 1, then after it has to go to network 2, then it has to go to network 3, then it has to go to network 4. So that is called virtual connection or connectivity of data communication. यहाँ अपन मान के चल रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति है, सेंडर एस को रिसीवर आर के पास डेटा भेजना है। जाने के लिए इसको नेटवर्क 1 में सेंडर है, नेटवर्क 4 के अंदर रिसीवर है, then network 1 to network 2 to network 3 to network 4, इस तरीके का रास्ता इसको या इस तरीके का पाथ इसको एक्सेस करना है। In that condition, these all networks have different capabilities, different network structure, or we can say hardware, software structure. इन सभी के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है
और सबकी कंपेटिबिलिटी नहीं, एक दूसरे के लायक नहीं, देन इट यूज टू कनेक्ट ए कम्युनिकेशन पाथ थ्रू राउटर्स, or we can say a router connects whole communication, or we can say connect a whole transmission part which makes compatibility. प्रत्येक नेटवर्क के साथ वो राउटर जोड़कर या ऐसे कुछ इंटरनेटवर्किंग जैसे ब्रिज भी हो सकता है, इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस जोड़कर उनके साथ डेटा को कनेक्ट कर देता है या पाथ को कनेक्ट कर देता है. दैट इज नोन एज इंटरनेटवर्किंग. व्हेन मोर देन वन नेटवर्क्स becomes compatible or becomes data transmittable for effective data communication, that is known as internet. उसको अपन इंटरनेट बोलते हैं. राउटर, ब्रिज, स्विचेज, हब, इस तरीके की डिवाइसेज का यूज किया जाता है फॉर इंटरनेट. तो आज अपन ने ये दो टॉपिक्स पढ़े which use for network layer processing or network layer function. Thank you.